जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो जो होने जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Good evening, Pranesh, and good evening to my fellow panelists. May I please begin, before I come to the thrust of my thesis, gently quiz you over something, with your permission? Please, sir, please go ahead. Thank you. Pranesh, what is common between GST, erecting huge flagpoles, bullet trains, OROP, playing national anthem in cinema halls, Aadhaar, Land Acquisition Act, CAA, the new parliament building, the 3 farm laws, and one nation, one election? The opposition's opposition. That comes secondary. But what is common is they were all Congress ideas. They were all implemented first by the Congress. That's right. And the tragedy is the moment Congress comes in opposition, it starts flagging and opposing the very ideas that it has implemented for 60, 70 years. By the way, for my previous panelists to say that the difference between 60s and now is 360 degrees, 360 degrees isn't difference at all. It should be 180 degrees. The question is, when the Congress is opposing this one nation, one election, it is going to the nub of criticizing Nehru. For 15 years, the Congress implemented one nation, one election. I must admit that right now I am, as you said, it requires a very nuanced discussion. I still am undecided about it, to be honest about it, because there are pros and cons. There are advantages and disadvantages. Let me mention a few. The clear advantages are you will save an enormous amount of money running into possibly lakhs of crores, as some estimates say, although I would love the government to give a bona fide estimate. It is said that for the last Lok Sabha election, the central government officially spent 5,000 crores. Obviously, the unofficial figure would be 10 times that. So yes, you're going to save a lot of money when you synchronize the elections. Number two, the administrative costs are going to be less. The administration that is forced to go from one place to the other perpetually all through the 5 years, possibly more, is now going to be concentrated on just maybe the so-called one nation, one election season of a month or month and a half. So yes, you're going to save a lot on that. And finally, very importantly, the lot of money, time, resources that are spent by our security forces, I think that is addressed by one nation, one election. So you don't have to perpetually be on the move, having tens of thousands of CRPF and other additional forces being deployed for central as well as state elections. Right. You do it in one go. The disadvantage obviously is, Pranesh, it's an emotional one. We are, without being patronizing, we're a very emotional people. I give you one example of the tragic assassination of Mrs. Indira Gandhi, and the aftermath of that, someone who had zero political experience fought the elections and won 415 seats. And I dare say if the state elections were held synchronously with the central election, Rajiv Gandhi and Congress would have swept each and every election. Having said that, it does make sense to have local issues differentiated properly from the central ones. So yes, I am undecided. That's my honest opinion. The panelist is thirsty for answers, and I'm ready to answer this question. The fact is that I commend the curiosity and thirst for knowledge. It's important. The thirst and quest for knowledge must always be with us. The political context, as I said, from the 1960s to now has completely changed. It's chalk and cheese. It's completely different now. Nehru's reality, and Nehru was India's greatest Prime Minister and the greatest Democrat. So I'm not accusing him for once, as the panelists seem to be saying in his confused venting about various things about Nehru. I'm not for a second suggesting that Nehru did not want to uphold the federal structure, that he did not want to uphold the rights of states. But what has happened now is, with the rise of the regional parties, with the rise of smaller parties, which represent very small demographics, with the rise of a highly diversified and localized polity, we now have a situation where Indian politics has become hyper-local. It's not even state-wise. It is actually constituency-wise. It is Ms. Ghosh, who's denying that? You saying it for the fifth time. Who's denying that?
Now, Things in have this become hyper-local. hyper-local polity. Now, 1 minute. Let me finish, Mr. Roy. You have a thirst for knowledge. Let me That's give you okay. some knowledge. We You should will all have benefit thirst from for knowledge. it. The idea that you can have a national referendum, that every election will be a referendum on a single leader, a referendum on a single party, a national referendum, goes against the spirit of the times, because we have become a multi-party, multi-government, multi-local, diverse, democratic, highly localized polity. It doesn't suit the times. Nehru's time was different. It was a simpler polity. There were two parties. It was not the regional parties didn't exist. Is You didn't TDP a have national multiplicity of party or a parties, regional you had party? Ms. multiplicity Ghosh, of players. 1 minute, ma'am. It is a completely No, you'll have to different quench my context. thirst. 1 minute. Yeah, I'm Is going- TDP, yeah. is I'm TDP ready a to regional explore it. party or a national party? I beg your pardon? Is TDP a regional party? Is BSP a regional party? What is the question here? I'll tell you. Answer the first part. Of course, these are regional parties. There Then very they are not strong afraid. regional parties. They are backing this proposal. I am speaking about it from the point of view of the Constitution, from the point of view of the Trinamool Congress, and from the point of view of... Now, when I asked you a question on I'm a spokesperson Constitution, on the of the principle of UCC, you said, let's talk about this. But We Dr. can't now speak Ranganathan, about- I will are you... not get diverted I'll come to you. Tessin, 1 minute. Look at the When we are speaking tutorial that about we are one having here. nation, 1 minute. one poll. Dr. Ranganathan, are you satisfied? Look, let's be. No, I'm sorry. My thirst remains unquenched. Maybe better luck next time. I had hoped that the previous panelist had not gone personal and said I'm confused and all. Be that it is a fact that an ungreased cycle chain always screeches less. The fact of the matter is, for somebody to call Nehru as the greatest Democrat, the guy who brought in the First Amendment to curtail our free speech, the guy who banned tens of books and films and arrested journalists, he is the greatest Democrat, be that as it may. Let's leave the education aside and learning aside. The fact of the matter is, and I go back to Tessin because he is one of the more sensible opponents of this scheme. Tessin, please tell me, how is this against the federal structure period when Nehru implemented it? I will explain it. May I please do that now? Please, please. Anand is right. For a long period of time, under the various governments, we had one nation, one election. Except by fate, by misuse, by whatever, governments started falling. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप देख सकें और इस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचा सकें। यह आप लोगों को दिखाई दिया होगा आनंद रंगनाथन का वीडियो। इसमें इस वीडियो में आनंद रंगनाथन है, जैसे तहसीन पुनावाला है और सागरिका घोष है और जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो भी हैं। और आपको दिखाई दिया होगा कि इस वीडियो में आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका जो एक ड्राफ्ट है उसको कैबिनेट ने पास किया है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर ने। और ये इस बार जो विंटर सेशन होने जा रहा है दिसंबर को, उस टाइम इसका बिल पेश किया जाएगा मेरे ख्याल से। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पिछले सेशन में हमारे गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे और उसको पास नहीं किया था, पर जेपीसी में डाल दिया था ताकि कंसल्टेशन के बाद, ताकि ये जो अपोजिशन है इसको कोई बहाना नहीं मिले कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग कंसल्टेशन में क्यों नहीं डालते, इट्स डायरेक्टली पास क्यों कर देते। और इनके जो एलाइज हैं उनको भी दिखाने के लिए कि आपके साथ हम बात कर रहे हैं। पहले तो ब्रूट मेजॉरिटी था तब नहीं किया था, तो फिर ये जाने दीजिए, ये तो कोई और बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रहा है और नरेंद्र मोदी जब से इलेक्ट हुए, आप समझ लीजिए 2014 से, तब से ये बोल रहे हैं, इनका एक एजेंडा रहा है कि ये इलेक्शन को बिल्कुल हर 1-2-3 महीने बाद इलेक्शन को बिल्कुल पसंद नहीं है नरेंद्र मोदी को। और मेरे को भी लगता है कि ये जो इलेक्शन नियरिंग है इसने हर 2-3 महीने में देश का बुरा ही किया है, क्योंकि जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो लोगों की बातें हैं, लोगों का नाराज़गी है, वो सब बात करने के लिए और गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, ताकि ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट,
और पूरा जो एक राज्य इलेक्शन में जाता है तो फिर पूरा उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और पूरा सब कुछ है वो ठप रह जाता है, और इलेक्शन के लिए कोई पॉलिसीज़ भी इनैक्ट नहीं कर सकते हैं लोग। तो फिर ये नहीं होना चाहिए, एक बार होके ख़त्म हो जाना चाहिए। खासकर ये जो विधानसभा और जो हमारा लोकसभा का इलेक्शंस है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये वो जो पंचायत इलेक्शंस है, लोकल बॉडी इलेक्शंस है, मेयर इलेक्शंस है, ये सब इलेक्शन भी होना चाहिए, पर वो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा। उसको आप साल में किसी भी टाइम किसी भी जगह कर सकते हैं। उसके लिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, और वो होते रहना चाहिए इंटरवल्स में, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो उसका ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी द मिनिमम गवर्नमेंट। जैसे स्टार्टिंग में नरेंद्र मोदी जी ने बोला था ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड बी स्मॉल गवर्नमेंट, जो एक सेट चीज़ों को करता हो, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और जो चीज़ें हैं वो सब ध्यान में गवर्नमेंट रखता हो। और स्टेट में भी ऐसे ही चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, और ये सब हो रहा है ठीक तरह। और इधर आनंद रंगनाथन उसके प्रोस भी गिन रहे हैं और कॉन्स भी गिन रहे हैं। कॉन्स ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इंटेंसिव होगा, लोगों को सिक्योरिटी, इतना सारा सिक्योरिटी लगाना पड़ता है एक लोकसभा इलेक्शन में ही, और वो भी कितने फेजेज़ में होता है, 7-8 फेजेज़ में होता है। अगर वो इलेक्शन हम 7-8 फेज़ में कर रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है, पूरा 2 महीने लग गया था हमारा 2024 का इलेक्शन का, वो 2 महीने नहीं लगना चाहिए, उसको 2-3 फेज़ में पूरा कर देना चाहिए था, ताकि लोगों को इतना ज़्यादा ऊप नहीं हो जाता है इलेक्शन से। तो फिर ये एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को भी सिलेक्ट करके ठीक तरह रखना चाहिए। और जो इक्विपमेंट है जैसे EVMs है, VVPAT है, इन सबको प्रोक्योर करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्शन होगा ये 2029 का इलेक्शन के टाइम ही होगा। ये जो इलेक्शन, उससे पहले हमारा जो डिलिमिटेशन है वो भी होगा। और डिलिमिटेशन सब लोगों को पता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स को इतना ज़्यादा पावरफुल स्टेक्स नहीं मिलेगा, उसमें ज़्यादा सीट्स नहीं मिलेगा डिलिमिटेशन में। उस डिलिमिटेशन प्लान को पास करने के बाद मेरे ख्याल से जो भी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आर गोइंग टू बी इन नॉर्थ इंडिया में होने जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स। और उन सीटों का पावर किसके हाथ में होगा? नरेंद्र मोदी, बीजेपी के हाथ। बीजेपी अभी भी समझ लीजिए 75% सीट जो नॉर्थ इंडिया का है वो बीजेपी रूल कर रहा है। और जो ईस्ट इंडिया है, जैसे वेस्ट बंगाल है, हमारा उड़ीसा है, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है, और भी स्टेट्स हैं जो ईस्ट में और वेस्ट में बीजेपी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वो वेस्ट का नुकसान, उसके लिए उनको भी ज़्यादा सीट दे देंगे और यही होगा देखना। और ये वन नेशन वाला इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये वन नेशन वाला इलेक्शन हमारे देश को परपेचुअली इलेक्शन मोड में नहीं रखेगा। और ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बीजेपी का एडवांटेज है, मैं बोलता हूँ नहीं है। मेरे को नहीं लगता है बीजेपी का एडवांटेज है, क्योंकि ये बीजेपी को ज़्यादा नुकसान देगा। ये जो पॉलिसी है इससे बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस को ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी इज़ अ कार्डर बेस्ड पार्टी और उनका एंथुजियाज़म हर टाइम सेम नहीं रहता है। और एक बार करेंगे तो फिर वो एंथुजियाज़म ख़त्म हो जाएगा एक बार के बाद, और वो लड़ना भूल जाएंगे, उनका जो सुस्त हो जाएंगे वो लोग। और उनका जो इलेक्शन मशीन है, इतना पावरफुल इलेक्शन मशीन है, उनको तो अच्छा लगता होगा हर 2, 3, 4, 5 महीने में इलेक्शन आते जा रहा है। उनको तो बहुत ज़्यादा मजबूत लगा होगा कि हमारा इलेक्शन मशीन हम फाइन ट्यून कर सकते हैं हर 2-3 महीने में। पर कांग्रेस का इतना ज़्यादा वो नहीं है, उनको 5 साल पूरा वेट करना चाहिए, उनका इलेक्शन मशीन बिल्डअप कर देना चाहिए। और उस 5 साल के बाद वो इलेक्शन मशीन और बीजेपी का इलेक्शन मशीन बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे और टक्कर की फ़ाइट होगी बिल्कुल। और वो टक्कर की फ़ाइट में कोई भी जीत सकता है। तो ये बीजेपी का प्रो बीजेपी नहीं होगा, एटलीस्ट तब तक नहीं होगा जब तक डिलिमिटेशन नहीं हो जाए। और डिलिमिटेशन 2026 में मस्ट है, उस डिलिमिटेशन को करना ही पड़ेगा। और उस डिलिमिटेशन के बाद हमारा जो ये वुमेन आरक्षण बिल था, औरतों के लिए आरक्षण बिल जो पास किया था इस 24 इलेक्शन से पहले, वो संविधान को संशोधित करके पास किया था, वो उसका भी इनैक्टमेंट होगा और औरतें ज़्यादा होंगी हमारे पार्लियामेंट में। हमारा नया पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, उतना लोगों का बैठा सकते हैं, उतने लोगों को हम उधर
रख सकते हैं उसका अभी अरेंजमेंट इसी के कारण किया है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन ज़्यादा जल्दी पास आ रहा है, तो फिर ये सब हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश ऐसे परपेचुअल इलेक्शन मोड में नहीं चल सकता। और पॉलिसी सिलेक्शन के लिए लड़ेंगे फिर ये लोग, और लोगों को भी पता चलेगा 5 साल बाद कि ये एक पार्टी है हमारा, इसने 5 साल तक क्या काम किया है। वो बस 3 4 5 साल में जो क्या बोलते हैं एक स्टेट इलेक्शन आता है उसमें बात नहीं करेंगे, पर पूरा जो एक परिप्रेक्ष्य है उनको पता चल जाएगा 5 साल में इसने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, और इस काम का मेरे को अच्छा लगा या बुरा लगा, इसका ये विवरण कर सकते हैं। उस विवरण के बाद उनको पता चलेगा कि ये गलत है या सही है। और न इस वीडियो में मिस्टर आनंद रंगनाथन ने ये भी बोला है कि ये 15 साल हमारा जो इंडिपेंडेंस के 15 साल बाद, जब तक मिस्टर नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद भी हुआ करता था, 2-3 बार हुआ था इंदिरा गांधी के टर्म में भी, और इंदिरा गांधी ने स्टॉप कर दिया था मेरे ख्याल से। जब ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं ये पावरफुल हो रही थी तब इसको स्टॉप कर दिया था, उनको थॉट करने के लिए कर रहे थे लोग, ताकि ये 5-5 साल वेट करके इनका ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल नहीं हो। यही जो मैं आर्गूमेंट दे रहा था, वही आर्गूमेंट के कारण जब कांग्रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल था तब कांग्रेस ने इसको हटा दिया था, पर उल्टा हो रहा है इधर। बीजेपी इज़ वेरी वेरी पावरफुल नाउ ऑल्सो, अभी भी एक छोटा सा झटका लगा है, उसके बाद भी बहुत पावरफुल है बीजेपी। ये तो मेरे को एक ब्लिप लग रहा है, ब्लिप इसलिए क्योंकि देखिए ये यूपी का जो इलेक्शन का जो हुआ था ये फ्लूक लगता है मेरे को, तो ये दूसरी बार होने जा रहा नहीं है। और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन इज़ अ वेरी गुड आइडिया। इस आइडिया को और भी फाइन ट्यून करके बीजेपी को एक बिल लेके आना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि ये वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, और आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो के बारे में क्या है वो भी बोल सकें आप कमेंट में। और आप देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव,